Yes, next video, straight line in space. Now you have two types of lines. One is straight line in plane. That the line can be drawn on the board, that is a straight line in a plane. Means if I draw a straight line on this white board, it means this is a straight line in plane. But straight line in space means this type of lines that are in space, that is not on the plane. Examples is all your electric wires or any type of wires you are observing, that are all straight line in a space. So the topic of discussion in this unit is straight line in space. So first is a straight line is uniquely fixed, mean a line can be uniquely fixed in space if it passes through the fixed point and fixed direction. हम इसको one point form भी कहते हैं. We call it a straight line one point form. Means two conditions, it passes through a fixed point, means given point होगा, that will be a part of statement. Has fixed directions, means कोई ना कोई directions भी होंगी. It means it has two conditions, one is point, another is directions. And second, it is passes through two fixed point. Second concept है कि ये दो fixed point से pass करेंगे. Let me take, this is a line L which is in the direction of vector B. And A is a point where it passes. This may be origin. This may be called as positions vector of A. But when you have to find out the equations, mean you have to take any point on P on the locus of the line, whose positions vector is R. Like in two-dimensional geometries, you are taken any point on the locus is X and Y, but here I am taking the point P, whose positions vector are R. By the definition of simple vectors, you know that AP can be written as lambda times of B, because AP is parallel to B. Lambda is any constant. You may change the constant also. So AP is equal to lambda times of B. By triangle of addition, it can be written as OP minus OA is equal to lambda times of B. It means OP is nothing, vector R can be written as A plus lambda B. So this is the equation of straight line in vector form. Here it is written equation of a straight line passing through the given point. Given point is A and parallel to the given vector is your B. And that you have to remember. R is nothing, R is any point on the locus of the line. Cartesian form means we will equate their components. Let vector R is equal to xi plus yj plus zk. Vector A is point हम let कर लेते हैं x1, y1 and z1. In the direction of B can be written as ai plus bj plus ck. तो ये B components है, ये vectors हैं. If you put here xi plus yj plus zk is equal to a x1i plus y1j plus z1k plus lambda times of ai plus bj, equating I component x minus x1 upon a is equal to lambda, equating I component. Equating j components, equating k components. So this is the equation of line either in Cartesian form or in symmetric form.
and if you want to learn this line, you should know two things in the line from the equations, ki what is the directions and what is the point. Here the vector with lambda is constant. Lambda vector with any constant is always the direction. Here in denominator a b c are the directions ratio. डायरेक्शन कहें या डायरेक्शंस रेशो कहें, एक ही बात है. अगर जो b कोई वेक्टर है जो डायरेक्शन है तो हम a b c डायरेक्शंस रेशो ऑफ द लाइन कहते हैं. ठीक है. इफ b इज द वेक्टर देन व्हाट इज द डायरेक्शंस रेशोज ऑफ b. ये मैं थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं. तो आप कहेंगे a b एंड c. अगर जो ए कोई वेक्टर है तो मीन ओ ए पोजिशंस वेक्टर हो गया. तो पोजिशंस वेक्टर की डायरेक्शंस हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो ये भी डायरेक्शंस रेशियोज ही होते हैं. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन. मीन इस लाइन के ऊपर कभी भी हमें कोई पॉइंट लेट करना हो तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऐसे लेट नहीं करते. उसमें कैलकुलेशंस टिपिकल हो जाती हैं. हम यहीं से एक्स वाई जेड लेट करना है तो हम एक्स को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ए लैम्डा प्लस एक्स वन. ऐसे ही वाई कैलकुलेट हो जाएगा बी लैम्डा प्लस वाई वन. जेड कैलकुलेट हो जाएगा सी लैम्डा प्लस जेड वन. तो ये हमारी टेक्निक्स रहती हैं. मीन्स इन पॉइंटों को लर्न करना बहुत इजी होता है कि x माइनस एक्स वन ए है. मीन्स ये x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा एंड z1 प्लस सी लैम्डा फ्रॉम हेयर. तो दिस इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अब यहां से आपके पास दो गिवन पॉइंट्स हैं. क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इट पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डायरेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स. मीन्स आपके पास यहाँ पे फिगर ये बनेगी, ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ई है. अब मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ. दिस इज योर पोजिशंस वेक्टर बी, दिस इज पोजिशंस वेक्टर ए डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज एनी पॉइंट पी ऑन द लोकस. लोकस के ऊपर पॉइंट तो जरूर आएगा. तो आप ए पी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस तो यही है. ए पी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ ए, एंड ए बी कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ ए. तो OP's vector are A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस है. वैसे भी आपको पता है कि if A and B are 2 points, how to find out the directions ratio, that is B माइनस है. पीछे की थ्योरीज में मैंने बताया था कि अगर जो आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो डायरेक्शंस रेशियो कैसे निकलेंगे. ये वेक्टर फॉर्म है. कार्टेशियन फॉर्म भी आप कह सकते हैं सेम. मीन्स इसके कोऑर्डिनेट आप लेट कर लें x1 y1 एंड z1. इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लें x2 y2 एंड z2. तो लाइन एक लेनी है तो क्या आएगा, कोई एक पॉइंट ले लें, इसी शेप में लर्न कर लें. x माइनस एक्स वन अपॉन डायरेक्शंस रेशो आएंगी. x2 माइनस एक्स वन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा. मीन्स टॉपिक्स तो बहुत इजी हैं कि फिगर से भी क्लियर, या इसको आई जे के कंपोनेंट इक्वेट करके भी हम कर सकते थे. एनी वे एनी मेथड से आप कर सकते हैं इसमें. लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर कंफर्म्ड है कि एग्जामिनेशंस में आता ही आता है. और अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं. इससे पहले कि मैं
एनसीईआरटी के सम्स करूं, मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराता हूं जो बहुत टिपिकल्स हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटीज और ज़्यादा आएंगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर equation of straight lines are 6x minus 2, 3y plus 1, 2z minus 2। स्पेस में लाइन ऐसी ही होती है। फाइंड नंबर 1 डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ द लाइन। नंबर 2 vector equation of line। passing through 1 minus 2 and 1 and parallel to the given line। सॉल्यूशंस, देखिए फर्स्ट जो लाइन है वो है तो कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन आप कार्टेशियन फॉर्म जब लर्न करते हैं तो आपको एक चीज लर्न करनी है यहाँ पे साइलेंटली, दैट इज कंप्लीटली योर ऑब्जर्वेशंस कि एक्स वाई एंड जेड इनके कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड शुड बी यूनिटी। मीन्स इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। x माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6 टू मेक दैम x यूनिटी। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे टू मेक दैम y यूनिटी। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे टू मेक दैम z यूनिटी। ये मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिया। एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू चेक दिस पॉइंट कि वेदर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर यूनिटी आर नॉट। नहीं है तो आप बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट। डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ लाइन फर्स्ट इज 1/6, 1/3, 1/2। That is 1, 2 and 3। 6 मैंने एलसीएम ले लिया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। वेक्टर इक्वेशन आर से स्टार्ट होगी। पासिंग थ्रू मीन ये पॉइंट्स हैं i माइनस 2j प्लस k एंड पैरेलल टू दिस मीन डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगी, i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए आप ये लाइन लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। मैं सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पासिंग थ्रू, देखिए वेक्टर आर, a इज द पॉइंट वेयर द लाइन passes and this is parallel to the given line, mean the direction ratio is same। The line is parallel to this line, mean directions ratio same रहेंगी। जो directions ratio यहाँ वो यहाँ पे लिख दी जाएंगी। इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये थ्योरी में ये पार्ट बताना चाह रहा था कि इफ एक्स वाई एंड जेड यूनिटी नहीं है तो ये किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको अटैच करके मिल जाता है। एनसीईआरटी में नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पहले यूनिटी वाले मिलेंगे, वहाँ पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेट वे एक क्वेश्चन दे दिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस, ये भी मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए ले रहा हूं।
Question number 2. Write the direction cosines of the line x is equal to -3, कॉमा, इस चीज को ध्यान से नोट किया करो, y - 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 - z बाय 1। देखिए, सबसे पहले आप इसको लाइन को रिड्यूस करेंगे। सॉल्यूशंस में इक्वेशन ऑफ लाइन x + 3 बाय 0 इज इक्वल टू y - 4 बाय 3 इज इक्वल टू z - 2 बाय -1 इज इक्वल टू लैम्डा। इस पॉइंट को समझो, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में तीनों साइन इक्वल के चाहिए। यहां पे कॉमा से लाइन डिफाइन नहीं होती सिमेट्रिकल। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर जो x + 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x + 3 बाय 0 इज इक्वल टू लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक ही बात आएगी। आगे यहां तो z माइनस साइन था, आई हैव आस्क्ड यू टू मेक इट पॉजिटिव, तो ये आ गया। तो आपने इस पॉइंट का ध्यान में रखना कि कॉमा वाली चीजें कैसे हैंडल करनी हैं। ना यहां से डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ लाइन 0, 3 एंड -1, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस 9 + 1 10, 0, 3 by √10 -1 by √10। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल्स देख लीजिए, फिर कुछ सम डिस्कस करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्ट्रेट लाइंस का, मींस मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बना के चलिए, क्वेश्चंस इजी रहेंगे। थोड़ा थ्योरी पे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेट लाइन के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, स्पेस की लाइनें होती हैं, लाइक योर इलेक्ट्रिक वायर्स का आप एग्जांपल माइंड में रख सकते हैं। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, लेट टू लाइंस L1 एंड L2 B, ये R हम चेंज नहीं करते क्योंकि इक्वेशन में x y z R ही रहता है। A1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, A2 + म्यू टाइम्स ऑफ B2। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मीन थीटा एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। मीन्स अगर जो स्पेस में ये दो लाइनें हैं ऐसे होंगी, जैसे मैंने दो पेन आपको शो किए हैं, तो इसमें पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस मीन एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, बस ये बात ध्यान में रख लेना। और वही डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगता है, कॉस थी B1 B2 निकालने आने चाहिए। ये दो टाइप की कंफ्यूजन हो सकती है B1 B2 में। तीसरे टाइप की आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगी अगर जो लाइनों में आपको मेरी दो बातें याद रह जाती हैं, एक कॉमा वाली और एक एक्स वाई जेड को यूनिटी, मींस किसी भी टाइप का आपको नया सम और नहीं मिलेगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, वही डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इफ द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म मीन दोनों डायरेक्शन पैरेलल होंगी, B1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 कह दिया ताकि आपको लगे कि सेम कांस्टेंट नहीं है। और परपेंडिकुलर की कंडीशंस भी वही हैं, B1 डॉट B2 0। अभी मैंने जो पिछला सम पैरेलल का किया था उसमें वही कॉन्सेप्ट्स मैंने लगा दिए थे। तो इस वीडियो में मैं थ्योरीज में इतना ही डिस्कस करूंगा, स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट थ्योरी मैं अगली वीडियोज़ में। Now let me take your exercise, few questions from the exercise 11.2.
आल दो एग्जाम्पल नंबर 6 की मैं रीडिंग करता हूं पहले। क्योंकि पैरेलल में कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइन एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे पास ऑन पेज नंबर 469। Find the vector and Cartesian equation of the line through the points mean coordinate of A 5, 2 and -4, which is parallel to the vector मीन्स डायरेक्शंस होती है। वेक्टर्स मीन डायरेक्शन 3i + 2j - 8k। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। तो वेक्टर इक्वेशन आप सीधा लिख सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू 0.5i + 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 2j - 8k। ये आपका आंसर होता है। वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन। ये आपको पता ही होता है। वेयर r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन, लोकस के ऊपर जो पॉइंट्स होता है, जो मैंने फिगर बना के आपको समझाया था। और कार्टेशियन फॉर्म x - x15 है अपॉन a, y - y12 है अपॉन 2, z + 4 डिवाइडेड बाय -8। दिस लाइन इज इन कार्टेशियन फॉर्म। एग्जामिनेशंस में इन पॉइंटों का बहुत ध्यान रखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी ये बातें। लेट मी टेक एग्जाम्पल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 470। Find the vector equation of the line passing through the points 0, -1, 0 and 2, and B is 3, 4 and 6। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हैं, पहले डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए बी, दैट इज 4, 4 and 4। सिंप्लीफाई करके आप इसको 1, 1 and 1 यूज कर सकते हैं। नाउ वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन, वेक्टर r इज इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट यूज किया जा सकता है, इधर a और b। तो -i + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i + j + k। हो सकता है पीछे आंसर 4 में दिया, आपको उसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड शेप में लगाने चाहिए। ये सिंपल सी वर्किंग है। पॉइंट आप यहाँ ये पॉइंट भी ले सकते हैं 3, 4, 6, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों ठीक मानते हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉइंट ए ही लेना होता है। मीन्स आइदर यू कैन टेक पॉइंट ए और यू कैन टेक पॉइंट बी। यहाँ पे 4, 4, 4 सिंप्लीफाइड करके लगाओ ताकि सम्स करने में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। नाउ लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 8।
The Cartesian equation of the line is given to you. Example number 8 has same page 470. Cartesian equations of line x plus 3 divided by 2 is equal to y minus 5 divided by 4 is equal to z plus 6 divided by 2. Find the vector equation of the line. सीधा लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 4 2. आई आस्क क्योंकि सिंप्लीफाई किया जा सकता है i प्लस 2j प्लस 2k. मीन्स डायरेक्शंस रेशियो ऑफ लाइन क्या दी हुई है 2 4 एंड 2. दैट इज सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी 1 2 एंड 1. डेफिनेशंस लगाइए. डायरेक्शंस रेशियोज आर प्रोपोर्शनल्स. एग्जाम्पल नंबर 9. Find the angles between the pair of lines. Vector r is equal to 3i plus 2j minus 4k plus lambda times of i plus 2j plus 2k. Second vector r is equal to 5j minus 2k plus mu times of 3i plus 2j plus 6k. तो लेट थीटा बी द एंगल्स. तो यहां पे लिख दिया करो इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 line L2. Theta be the angles between L1 and L2. तो where B1 यहां से क्या डायरेक्शंस रेशियोज. सीधा यही लिख लिया करो डायरेक्शन या वेक्टर की शेप में जैसे मर्जी लिख लें. इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. और B2 3i plus 2j plus, because angle between two lines mean angle between two directions. बस ये पॉइंट ध्यान में रख लेना. आगे ये सब डॉट प्रोडक्ट का ही होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2. मीन्स i प्लस 2j प्लस 2k dot product with 3i plus 2j plus 6k upon magnitude of 1 plus 4 plus 4, 9 plus 4 plus 36. That is 3 plus 4 plus 12 upon 3 into 7. That is 19 by 21. This implies theta is equal to so this is the angle between two. Example number 10.
Try to complete yourself example number 10. Now let me take your exercise 11.2. I think our first question number 1 to 13 can be easily solved. Exercise 11.2, question number 1 to 13. First, show that the three lines with direction cosines are mutually perpendiculars. मीन्स डॉट प्रोडक्ट में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स मीन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 12/13 -3/13 -4/13. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 4/13 12/13 and 3/13. Direction cosines of L3 3/13 -4/13 and 12/13. Lines to show mutually perpendicular. Lines to show mutually perpendicular means L1 dot L2 is equal to L2 dot L3 is equal to L3 dot L1 is equal to 0. डॉट जरूर लगाया करें. अब देखिए L1 डॉट L2 क्या आता है. 48 -36 -12 upon 169 which is equal to 0. L2 dot L3 12 -48 plus 36. L3 dot L1 36 plus 12 minus 48, which show that they are mutually perpendicular. मीन्स कॉन्सेप्ट वही है कि अगर जो आप इसको आई जे के की शेप में रखते हैं तब भी आई डॉट आई वन. लेकिन मैंने पीछे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एंगल्स बिटवीन टू डायरेक्शंस, जहाँ डायरेक्शंस रेशो और डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही थी, वहाँ मैंने कहा था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0. लेकिन वहाँ इसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 एंड N2 थे. ठीक है. देखिए फार्मूला ये है कि अगर जो एक डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L1 M1 एंड N1 है और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अनदर लाइन L2 M2 एंड N2 है, तो हमने कॉस ऑफ एन एंगल थीटा ये भी बताया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इफ थीटा इज 90 डिग्री. मीन्स हमने आपको ये बता रखा है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0. एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं.
Next, show that the line through the points is perpendicular to the line through the points this. अब देखिए लाइन परपेंडिकुलर, पॉइंट ए क्या ले लेंगे 1 -1 and 2 and second point B is 3 4 and -2 is perpendicular to the point C 0 3 and 2 and D point is 3 5 and 6. Okay, find out directions ratios of AB. क्या आएंगे 2 5 and -4. दैट इज आप यहाँ लिखेंगे OB minus OA. दैट इज 3 -1 comma 4 minus of -1 comma. ऐसी डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ CD 3 2 and 4. ठीक है, AB डॉट CD 0 होना चाहिए टू प्रूव, बिकॉज you want to show AB perpendicular to CD. So this implies 6 plus 10 minus 16 is equal to 0, which proves that AB is perpendicular to CD. This means line through the point is perpendicular to the line. मीन्स आपके ये सम डायरेक्शंस रेशियो से बड़े आसानी से कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स अब पैरेलल प्रूव करना है. ए के पॉइंट 4 7 and 8 हैं. बी के पॉइंट्स आप ले सकते हैं 2 3 and 4. सी के पॉइंट्स ले सकते हैं -1 -2 and 1 और डी के ले सकते हैं 1 2 and 5. टू शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. टू शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो आपको यही पता है कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आप सी डी कर देंगे. ये भी मैंने थ्योरी में लिखवा रखा है B1 इज इक्वल टू दिस. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ए बी? -2 -4 and -4. मैंने कहा था सिंप्लीफाई करते हुए बिल्कुल हेजिटेट मत करो. तो डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ सी डी 2 4 and 4, that is 1 2 and 2. So this implies AB is equal to CD. This implies AB is parallel to CD. Hence proved. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमेशा इक्वल आते. और डायरेक्शंस रेशियो सिंप्लीफाई मैं डे 1 से कराता हूँ, क्योंकि जब 3D के आप बहुत भारी सम करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड की हैबिट्स आपको पे करेगी. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू करा चुका हूँ. इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स है, मतलब फर्स्ट कंडीशन से. दोनों ही फॉर्म में आपको लाइनें बतानी है. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. मैंने आपको कहा कि दिस आई हैव ऑलरेडी डन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स
1 2 3 मीन्स सीधा लिखेंगे I प्लस 2j प्लस 3k पासिंग थ्रू दिस पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब उन्होंने लाइन पूछी है, मेंशन तो किया नहीं कि वेक्टर फॉर्म है या कार्टेशियंस, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो आई हैव रिटन दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहले वाला तो पॉइंट है, मतलब आप आई जे के की क्रैमिंग नहीं कर सकते, दोनों ही आई जे के में लिखे हुए हैं, जस्ट आप रीडिंग करके आइडिया ले सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 2/1 y प्लस 1/2 z माइनस 4/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट्स दिया हुआ है -2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो उसकी डायरेक्शंस रेशियोज है वही ले लो, 3 प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये दिया हुआ पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। मीन्स यही डायरेक्शंस रेशियो एज इट इज यहां पे आ जाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट में पैरेलल का कॉन्सेप्ट यही दिया था। रीडिंग कर करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स बना के एक एक लाइन के ही सम्स होते हैं, सिर्फ आपने थ्योरी को लर्न करना। क्वेश्चन नंबर 7 खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट तो 0 0 0 दिया हुआ है एंड दूसरा पॉइंट ए आपको दे दिया 5 -2 and 3। तो डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ओ ए विल बी 5 -2 and 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गई। और वेक्टर फॉर्म यहां इससे पास करेंगे तो 0i प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i माइनस 2j प्लस 3k, क्योंकि पॉइंट आपका 0 0 0 है। मीन्स आप वेक्टर्स एंड कार्टेशियन फॉर्म में ये वाली टेक्निक ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल्स बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आप B1 और B2 निकाल के एंगल्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स में आपको कवर कर दिया था। ये 11 भी आप खुद करेंगे। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइन्स 1 माइनस x अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p z माइनस 3 अपॉन 2 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस z अपॉन 5।
व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7 और z माइनस 3 बाय 2। इसको चेंज करेंगे -7 से डिवाइड करके, y माइनस 5 बाय 1, z माइनस 6 बाय -5। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है। ये थ्योरी मैं आपको पहले समझा चुका था। ये इक्वेशन ऑफ लाइन L2 है। मैंने कहा था एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यूनिटी रहेंगे। यहाँ -1 था, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, यूनिटी बनाने के लिए 7 से कर दिया। ये सेम है, इसमें -7 से डिवाइड कर दिया, इसमें -1 से। कंडीशंस है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दैट इज -3 इंटू -3p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। तो 9p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 इज इक्वल टू 10। 11p इज इक्वल टू 70, therefore p इज इक्वल टू 70 बाय 11। तो ये क्वेश्चंस मैंने पहले कॉन्सेप्ट इसीलिए बिल्ट अप किया था। जब ऐसा सम एग्जामिनेशन में आता तो नॉर्मली पीपल से कि पेपर इस बार ट्विस्टेड आया है, बट ये ट्विस्टेड नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। मीन्स इसके बगैर तो स्ट्रेट लाइंस करने का कोई आइडियाज ही नहीं है। जब तक आप ये फॉलो नहीं करते कि एक्स वाई जेड आपके यूनिटी हैं या नहीं है, ये तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसमें शो करना है, कोई p की वैल्यूज नहीं निकालनी। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इक्वेशन ऑफ L1 x माइनस 5 बाय 7 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय -5, ये तो बिल्कुल ठीक है लाइन, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 x बाय 1 भी ठीक है, y बाय 2 भी ठीक है एंड z बाय 3 भी ठीक है। L1 इज, आप लिख सकते हैं डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ L1 7 -5 एंड 1, directions ratios of L2 1 2 and 3. So this implies 7 minus 10 plus 3 is equal to 0. This implies L1 is perpendicular to L2. तो आप यहाँ पे आज 1 to 13 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जितने मैंने एग्जाम्पल्स दिए उतने करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको कवर करेंगे तो प्लेन करना इजी रहेगा।